Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening of class 11th present on that side. I've been again present in front of you and welcomes each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. As you know that we are dealing on the chapter named as the laws of motion and we are in the part 2 of the laws of motion means the friction. Now we have studied various things about the friction. हम लोगों ने frictions के type, उसके concepts, everything हम लोगों ने discuss किए. And in the previous lecture we also discussed the work done against the friction while in a horizontal surface or over the inclined surface. And we also clear one of the most important concept और एक बहुत ही genuine आने वाला question है कि whether the pulling is easier or whether the pushing is easier, means which one is easy, to pull a body or to push a body, or under what condition pull ज़्यादा होता है या फिर push ज़्यादा होता है, या दोनों equal भी हो सकते हैं. तो हम लोगों ने ट्राई किया इस एक ऑथेंटिक क्वेश्चन जो बहुत टाइम से अराइजेस होता है और सबके दिमाग में भी आता था. आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दैट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोशन से ही रिलेटेड है. बेसिकली हम लोग लॉज ऑफ मोशन को ही पढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत टाइम से मोशन को ही करते हैं, कभी 1D में कभी 2D में. जब हमने वेक्टर पढ़ा तो प्रोजेक्टाइल पढ़ा और अब हम उसके लॉज को देख रहे हैं. बट in the vector chapter there was a one topic जो मैंने personally speak करने के बाद आपको कहा था that we are going to hold that topic. हम उस टॉपिक को होल्ड करने वाले थे और हम लोगों ने उसे वहां पे होल्ड रखा. Today I am going to start the same topic of the motion because उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हमें फ्यूचर में हेल्प करेंगे. So I am going to start that motion and that motion is circular motion. Means today's lecture is completely dedicated about the circular motion. So what we are going to do in today's lecture, let me clear at the starting itself that we are going to discuss about the definition of circular motion, ये आप जानते हैं, but we are going to discuss about the various parameters if we want to study the circular motion. अगर हम circular motion को पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ने के लिए कुछ parameters चाहिए. जैसे आप linear motion को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ parameters चाहिए, like displacement को study करना आना चाहिए, velocity study करना आना चाहिए, acceleration, तभी तो हम linear motion को study कर सकते हैं. ऐसे ही हम लोग सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशंस आज जरूर गैदर करके जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो आवर टॉपिक इज सर्कुलर मोशन. ओके, सो दिस टॉपिक इज फ्रॉम द लास्ट चैप्टर. अगर आप लोग इसे एनसीईआरटी में देखते हैं, so if you go and look in the NCERT you will see or you will find that this topic is in the vector 1. ये वेक्टर के अंदर है, बट हम लोग इसे यहाँ पे आज कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी भी टॉपिक को वहीं पे पढ़ेंगे जहाँ पे हमें इसकी जरूरत होगी. जैसे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में आपसे बात की, वो हमें मोशन इन 1D में पढ़ा रखा है एनसीईआरटी में, बट उसके कॉन्सेप्ट तभी समझ में आ सकते हैं जब हम आगे जाएं. So let's start with the circular motion. So basically what is circular motion? ये तो आप जानते हैं, तो सबके दिमाग में आइडिया क्लियर हो गया होगा. Circular motion means ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं. So what is the circular motion? Means when a body moves, when a body moves around a fixed point, moves around a fixed point at a fixed distance from it, at a fixed distance from it. Such motion is known as, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बुलाएंगे? We will call that motion as a circular motion. So what is circular motion? जब आपका बॉडी किसी भी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा हो, सो वो पॉइंट जिसके चारों तरफ आप घूम रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पॉइंट फिक्स होना चाहिए. बिकॉज इन फ्यूचर जब आप लोग फिजिक्स को और आगे डीपली स्टडी करेंगे और वेरियस ब्रांचेस के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, यू विल गेट टू नो कि कुछ बॉडीज और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम तो रहे हैं, बट वो पॉइंट जिसके चारों तरफ वो घूम रहे हैं वो पॉइंट ही फिक्स नहीं है.
मींस वो पॉइंट पहले यहाँ आया, थोड़ी देर के बाद आगे चला गया, मींस वो सेंटर पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है। तो अगर वो सेंटर पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है तो फिर हम उसे सर्कुलर नहीं बुलाएंगे, उसे हम लोग दूसरा मोशन बुलाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। सो ये हमारा पॉइंट है जिसके चारों तरफ हम लोग रिवॉल्व करने वाले हैं, बट दैट पॉइंट शुड आल्सो बी फिक्स। नाउ द बॉडी व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉइंट, उस बॉडी का डिस्टेंस आपके उस फिक्स पॉइंट से भी फिक्स होना चाहिए। मींस द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट शुड बी फिक्स। मीन जो फिक्स पॉइंट है उससे उस बॉडी का डिस्टेंस भी फिक्स होना चाहिए, और उसी फिक्स डिस्टेंस पे बॉडी उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। एंड अगर बॉडी कुछ इस तरीके के मोशन में जाता है, वी विल कॉल दैट मोशन एज अ सर्कुलर मोशन। तो देखो अब हर पॉइंट यहाँ पे इवॉल्व और उसे इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट मैटर करती हैं। दैट आपको अपने सेंटर पॉइंट को लेके 100% क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास किसी भी डेफिनेशन में अगर कोई क्लियरेंस नहीं है, यानी उसमें कोई 1% भी डाउट होने का चांसेस है, जब भी आप अपनी डेफिनेशन बताते हो बट उस डेफिनेशन में 100% बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, मतलब क्लियरेंस नहीं है, तो अगर ऐसा है तो सामने वाला डाउट लेके आ सकता है। तो अगर आप ये कहते हैं व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व अराउंड अ पॉइंट, एक बॉडी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है, उसे सर्कुलर मोशन है। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है और वो डिस्टेंस भी सेम है बट वो पॉइंट फिक्स नहीं है, तो पहले जिस पॉइंट के चारों तरफ घूमी वो यहां तक था, अब थोड़ी देर के बाद पॉइंट आगे गया, अब उस पॉइंट के चारों तरफ उसी डिस्टेंस पे, अब उसी पॉइंट पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मोशन, कि आप उस पॉइंट के चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस पे, लेट्स सपोज आपका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो आप उस पॉइंट के चारों तरफ 5 सेंटीमीटर दूरी घूम रहे हो हमेशा। बट पॉइंट इज दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो पॉइंट भी अपनी पोजीशन बदल रहा है, और अगर वो पॉइंट भी अपनी पोजीशन बदल रहा है तो इसका मतलब आप वहीं पे नहीं हो, फिर आप लोग वहीं उसी के साथ शिफ्ट होते जाओगे। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज हेलिकल मोशन। इस मोशन को क्या बुलाएंगे, हेलिकल मोशन, और इस पाथ को आप बुलाएंगे हेलिकल पाथ। सो व्हाट यू कॉल दिस, यू विल कॉल दिस एज अ हेलिकल पाथ, यानी जिसमें आपका डिस्टेंस तो फिक्स है। व्हाट इज फिक्स, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द पॉइंट इज फिक्स, बट जो पॉइंट है यानी सेंटर है वो अनफिक्स है, यानी वो फिक्स नहीं है। तो इस मोशन को क्या बुलाएंगे, हेलिकल मोशन। अब देखो दूसरी चीज जिसके बारे में हमें फिक्स करना है वो है डिस्टेंस। तो पहली बात पॉइंट फिक्स है, अब अगर पॉइंट फिक्स नहीं हुआ तो मोशन कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरा है डिस्टेंस, यानी इस बार आपका सेंटर तो फिक्स है। आपने कहा कि एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमने को सर्कुलर मोशन बुलाते हैं। If somebody says what is circular motion, that when a body moves around a fixed point, जब एक बॉडी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमती है बट आपने डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, बहुत छोटा सा पॉइंट है बट पॉइंट है, समझना इस बात को। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं उस बॉडी के चारों तरफ घूम रहा हूं बट मैंने डिस्टेंस के बारे में बात नहीं की कि वो फिक्स है या अनफिक्स है, तो अगर वो अनफिक्स नहीं होता, अगर वो फिक्स नहीं होता है मींस वो डिस्टेंस सेम नहीं है बट पॉइंट वही है, तो आप यहां पे घूम रहे हो उसके चारों तरफ, सो यू आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, बट आपका डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, लेट्स सपोज ऐसे। अंडरस्टूड दैट व्हाट यू आर डूइंग, दैट आप उस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हो। देखो बात स्टेटमेंट है, अगर आप ऐसे बोलते हैं ना बॉडी मूव्स अराउंड द फिक्स पॉइंट, जब बॉडी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमती है उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब आपने डिस्टेंस के बारे में नहीं बोला, और अगर डिस्टेंस मान लीजिए अगर चेंज हो रहा है, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो घट रहा है, तो इस टाइप के मोशन को आप लोग क्या बुलाएंगे, स्पाइरल मोशन। व्हाट वी कॉल दिस एज अ स्पाइरल मोशन, मीन मोशन जिसमें पॉइंट तो फिक्स है बट आपका डिस्टेंस वो अनफिक्स है, यानी वो फिक्स नहीं है। तो जिसमें डिस्टेंस फिक्स ना हो बट सेंटर पॉइंट फिक्स हो, उस टाइप के मोशन को हम बुलाएंगे स्पाइरल मोशन। वो और रिस्पेक्टिवली जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को आप बुलाएंगे व्हाट, यू विल कॉल दैट एज अ स्पाइरल पाथ। सिमिलरली जब आपका डिस्टेंस फिक्स है, यानी आप उस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हो बट फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट है हर बार, बट आपका वो सेंटर पॉइंट ही फिक्स नहीं है, अब ऐसे वाले मोशन को आप बुलाएंगे हेलिकल मोशन, एंड करस्पॉन्डिंग पाथ विल कॉल एज अ हेलिकल पाथ।
ये दोनों अभी हमें स्टडी नहीं करने हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस। इसे हम लोग 12th क्लास में कुछ स्पेशल बॉडीज में देखेंगे। कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो हेलिकल पाथ को ओबे करेंगी, और कुछ बॉडीज ऐसी होंगी, कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां पे बॉडी कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करेगी। बट मैं आपको वो डिस्टिंग्विश करना चाहता था कि इन दोनों पॉइंट को लिखने का एडवांटेज क्या है, क्योंकि आप इसे कैजुअल ले जाते हो। आप क्या मोस्टली समटाइम टीचर भी इसे कैजुअल ले जाता है। जब आप लोग इसे जब बेसिक जगह पे पढ़ते हो, आपने इसे प्राइमरी स्टार्ट पे पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन 9th क्लास में, तो माइट भी आप लोगों ने यही सुना होगा, या आपके दिमाग में भी अभी मोस्ट ऑफ यू आप इस फ्रैंकली इस चीज को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि अब तक हम लोग यही बोलते थे कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ घूमना सर्कुलर मोशन कहलाता है। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप अभी भी इन पॉइंट्स को याद करते हुए ऐसे यूज करते हैं, इट मींस आप टोटली फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को समझिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपने अगर एक पॉइंट को यहां से वहां किया, अगर कोई एक पॉइंट मिस हुआ, डेफिनेशंस भी शायद मिस हो सकती हैं। ओके, अगर हम पॉइंट की जगह फिक्स ना लिखते तो हम बोलते हैं फिक्स डिस्टेंस पे मूव करने को सर्कुलर बोलते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है। ओके, नाउ द सर्कुलर पाथ जिसमें दोनों चीजें फिक्स हैं, जिसमें आपका पॉइंट भी फिक्स है और उसके चारों तरफ घूमने वाला वो डिस्टेंस भी फिक्स है, ऐसे पाथ को, ऐसे मोशन को आप क्या बुलाएंगे? सर्कुलर मोशन। और उसका करस्पॉन्डिंग जो भी पाथ होगा उसे आप क्या बुलाएंगे? सर्कुलर पाथ। तो बेसिकली हमें 11th क्लास में यही पढ़ना है और हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों नहीं है, बट आई वांट कि आप इन दोनों का डिस्टिंग्विश भी लिख लें। वहीं पे मैं डायग्राम बना लीजिए, डिस्टिंग्विश लिख लीजिए कि इसमें क्या खासियत है और इसमें क्या है, यानी ये दोनों मोशन इससे कैसे अलग है। होप यू गॉट इट। ओके, अगर दोनों ही चीजें फिक्स ना हो, ना इधर आपका पॉइंट फिक्स है ना इधर आपका डिस्टेंस फिक्स है, तो वो आपका एक रैंडम मोशन हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, क्योंकि पॉइंट भी फिक्स नहीं है, पता नहीं कहां जा रहा है, और डिस्टेंस भी फिक्स नहीं है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा है, तो वो एक अनइवन पाथ हो गया। उसको लेके हम लोग कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते। होप यू गॉट द स्मॉल डिफरेंस। आप इन तीनों बात में एक छोटा सा डिफरेंस पकड़ पाएंगे ना। ओके, सो दिस इज योर सर्कुलर मोशन, मींस व्हेन यू मूव्स अराउंड अ बॉडी ऑफ अ फिक्स, जब आपका एक बॉडी किसी भी पॉइंट के चारों तरफ, और वो भी पॉइंट फिक्स होना चाहिए और डिस्टेंस भी फिक्स, दैट मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। उस मोशन को हम लोग क्या बुलाएंगे? सर्कुलर मोशन। नाउ वी विल क्लासिफाई दिस। अब हम लोग इसे क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई, और यू कैन से द टाइप्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। द फर्स्ट वन इज, जो हम लोग हमेशा से करते हैं, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो यूनिफॉर्म से तो आप फेमिलियर है। यूनिफॉर्म मोशन means when a body covers equal distance in equal interval of time. So when a body covers equal distance in equal interval of time, we will call this as a uniform motion. But इस बार circular है, तो what we'll call? When a body covers, when a body covers equal distance, but किसके across? Across circumference. When a body covers equal distance, मान लीजिए आपका बॉडी इनिशियली P पॉइंट पे, now it is at a Q पॉइंट, तो ये आपका जो डिस्टेंस कवर किया, this is your distance covered, लीनियर डिस्टेंस। ओके, ये कौन सा डिस्टेंस है? लीनियर। लीनियर मतलब लाइन में, बट ये जो लीनियर डिस्टेंस है वो किसके अक्रॉस है? अक्रॉस दी सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर। When you cover equal distance in equal interval of time, equal interval of time is known as, उसे आप लोग क्या बुलाएंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मीन UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन जब आप लोग सर्कमफेरेंस पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये तो आप जानते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस बाय टाइम? डिस्टेंस बाय टाइम स्टैंड्स फॉर स्पीड। इसका मतलब इन UCM, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड इज कांस्टेंट। क्या चीज कांस्टेंट होती है? इस बात को याद रखेंगे। व्हाट इज कांस्टेंट? स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड सेम है,
वेलोसिटी सेम नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए उसके बारे में बात करता हूं जो अभी वेलोसिटी का फैक्टर है। तो ये तो आप जानते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मींस स्पेसिफिकली हम उसकी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब एक पॉइंट पे देखिए, लेट्स सपोज यू आर एट अ पी पॉइंट। सो एट पी पॉइंट आपका पोजीशन कहां पे है, वेयर इज योर पोजीशन एट पी पॉइंट। सो डेफिनेटली एक चीज आज आपको सिखा देता हूं, दैट फॉर एन एग्जांपल इमेजिन दैट कि आपके पास एक स्टोन है, एक बॉडी है, एंड यू टाइड दैट स्टोन विद अ थ्रेड। आपने उसे एक धागे से बांधा एंड यू आर रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ओवर योर हेड, यानी पत्थर को धागे से बांध के आप घुमा रहे हो गया ऐसा ही सर्कुलर पाथ फिक्स। अब मान लीजिए लेट्स सपोज आप इसे इस तरीके से घुमा रहे हो, यू आर मूविंग दिस इन दिस टाइप ऑफ पाथ। ओके, नाउ मान लीजिए वो आपका जो पत्थर है, द स्टोन दैट यू आर टाइड विद दिस स्ट्रिंग, वो पी पॉइंट पे आके टूट जाता है। इमेजिन दैट योर स्टोन ब्रेक्स एट अ पी पॉइंट। तो अगर आपका पत्थर पी पॉइंट पे टूटता है और अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो आपका पत्थर किस तरफ जाएगा, योर स्टोन विल गो इन दिस डायरेक्शन। सो वेयरएवर दैट स्टोन ब्रेक, जहां पे भी वो पत्थर टूटता है तो उस पॉइंट पे उस पत्थर के जाने की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और ये जो डायरेक्शन मैंने ड्रॉ की है, द डायरेक्शन दैट आई हैव ड्रॉन नाउ, द पॉइंट, ओके, ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, दिस एरो, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एट पी पॉइंट। और ये उस सर्कल के रिस्पेक्ट का क्या है, टेंजेंट। ये उस सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या है, ये टेंजेंट ही है which touches the circle at one point। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, the conclusion is that the position of the body in circular motion at p point is always along the tangent। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर ये p पॉइंट पे टूटा है तो इस तरफ जाता, अगर ये q पॉइंट पे ब्रेक होता तो इस तरफ जाता, अगर ये यहां पे आके ब्रेक होता तो नीचे की तरफ आता, यहां पे ब्रेक होता तो इस तरफ जाता। तो इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ पे कहीं पर भी ब्रेक होता वो हमेशा अलोंग दी टेंजेंट की तरफ जाता। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और एक इंपॉर्टेंट नोट क्या मिला, दैट पोजीशन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर पाथ is always along the tangent। तो सर्कुलर पाथ पे आपकी पोजीशन हमेशा कहां रहती है, along the tangent। तो डेफिनेटली अगर आपका पोजीशन का डायरेक्शन along the tangent है, पोजीशन मीन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन along the tangent है, तो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी along the tangent ही होगा। सो P पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन along the tangent। तो जहां पे आपने पोजीशन लिखा है वहां पे स्लैश करके आप लोग वेलोसिटी भी ऐड करेंगे प्लीज। द पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। वो हमेशा कहां रहती है, टेंजेंट की तरफ रहती है। ओके, सो दिस इज योर पोजीशन और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की पोजीशन और बॉडी की वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम कौन से मोशन को देख रहे हैं, we are dealing in a uniform circular motion, means the type of circular motion in which body covers equal distance in equal interval of time along the circumference। तो यानी उसकी स्पीड सेम है। स्पीड मींस मैग्नीट्यूड। तो आप जब स्पीड के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट जैसे ही हम P से Q गए, देखो आपके टेंजेंट की डायरेक्शन बदल गई। क्यों, क्योंकि आपका पोजीशन बदल गया। किसी और पॉइंट पे जाएंगे तो उसका टेंजेंट कहीं और है, किसी और पॉइंट पे जाएंगे तो टेंजेंट और है। यानी ये तो आप जानते हैं सर्कल की प्रॉपर्टी, दैट सर्कल के एवरी डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस पे टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में बनेगा। यानी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकता है, ये आप जानते हैं। तो अगर पॉइंट्स अलग हैं तो टेंजेंट भी अलग अलग होंगे, और अगर टेंजेंट अलग है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलग होगी।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है तो वी ऑल नो दैट वेलोसिटी इज कंबाइनली अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये लिख सकते हैं दैट इन UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। जब आप ये बोलते हैं व्हेन यू कॉल वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट मींस, जब आप वेलोसिटी बोलते हैं इट मींस आप उसके दोनों फैक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। यू आर इंक्लूडिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड यू आर इंक्लूडिंग इट्स डायरेक्शन। और अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर एक भी फैक्टर चेंज हो गया है, अगर आपने किसी भी चीज का या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया बट डायरेक्शन सेम थी, तो भी वो क्वांटिटी चेंज हो गई। अगर आपने किसी भी चीज का अगर मैग्नीट्यूड सेम रखा बट डायरेक्शन बदल दी, तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी फिर से बदल गई। जैसे 10 मीटर इन ईस्ट, 10 मीटर इन नॉर्थ। सो 10 मीटर ईस्ट डिस्प्लेसमेंट है, बट 10 मीटर नॉर्थ वो भी डिस्प्लेसमेंट है। बट क्या दोनों एक ही डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स, ये तो आप जानते हैं, two vectors can be called as a equal vectors if they have same magnitude and same direction। अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तभी इक्वल बोलेंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों पॉइंट पे बट डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे वेलोसिटी हर जगह अलग अलग होगी, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड भी तो सेम है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हो तो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, बट डायरेक्शन वाइज बदल गई। और अगर डायरेक्शन वाइज बदल गई है तो डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड व्हाट यू कॉल दैट मोशन, उस मोशन को आप लोग क्या बुलाएंगे जिसमें आपकी वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? वी कॉल दैट एज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब ये जो मोशन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कमफेरेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें आपका स्पीड कांस्टेंट है या फिर बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग इट मींस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एंड इफ इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम लोग UCM यानी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट बना दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। इस बात को सब समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एक्सेलरेशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सीखने वाली बात है। मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तक क्या पढ़ा था? जब भी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा, यूनिफॉर्म कैसा मोशन? लीनियर मोशन। लीनियर है इसका मतलब वेलोसिटी सेम है, और अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन जीरो। तो यानी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। इस बात को याद रखिए और रिवाइज कीजिए कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो जब हम ये लिखते हैं व्हेनेवर वी राइट दैट अब दिस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, हम लीनियर वर्ड यूज नहीं करते, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन यूज कर देते हैं। अगर आप लीनियर यूज कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी हम ये बोलते हैं दिस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, तो आपसे कोई पूछे एक्सेलरेशन कितना है, यू विल से 0, क्योंकि सर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। बट अगर आपसे कोई ये कहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बेटा उसका एक्सेलरेशन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन तो होगा। सो दिस इज द न्यू थिंग, माइट बी आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और नई चीज है, बेसिक है, जो आपको समझना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी एक्सेलरेटेड होता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट है जो आप लोग हाईलाइटेड करके लिखेंगे। आई थिंक एम आई क्लियर विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि अब हम लोग इसी टाइप को ही आगे लेके जाएंगे और इसी टाइप को ही आगे पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं आपको इसकी दूसरी कैटेगरी बताऊं, सो व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि इसको आगे जाके डील या कंटिन्यू करना ही नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कमफेरेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड as well as direction of velocity changes। वो मोशन जिसमें आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो देखो हर बार चेंज होगा ही, तो जब भी आप सर्कुलर मोशन में हैं तो आपका हर पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट है, बट आपका यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो जब आप लोग वेलोसिटी के दोनों फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं, या एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स यानी उसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, अगर दोनों ही चीजें चेंज हो रही है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। और डेफिनेटली यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है, तो यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये तो एक्सेलरेटेड होगा ही होगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसे ही हम लोग अब आगे डील करते हुए जाएंगे। यानी मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल 95%, मोर देन 95% मैं आपको कहूंगा, जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन या न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, दैट मोशन वुड बी कंसीडर्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। यानी आप उसकी स्पीड को यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सेम रखेंगे, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन को नहीं। और इसको लेके आज हम लोग एक नया एक्सप्रेशन और आगे वाली चीजें भी पढ़ेंगे। Got that point? So this is about the basic introduction of circular and its type. I hope you got that point. Okay. Now once you got that point, so we are going to discuss the various parameters. चलो अब इसके various parameters को study करना शुरू कर देते हैं सर्कुलर मोशन के, ताकि हम लोग सर्कुलर मोशन को well defined और अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाएं। So let's start with that. तो जब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं तो वेरियस पैरामीटर्स में, सो द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पैरामीटर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीजें पढ़ेंगे जो हम लोग वहां पे पढ़ते थे लीनियर मोशन के लिए, और द सिंबल फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सिंपल थीटा, जो हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए एक बार डायग्राम को देखेंगे। लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है विच इज इन द सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट O। तो बॉडी का इनिशियल पॉइंट P, तो बॉडी का इनिशियल पॉइंट P एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर T टाइम, मान लीजिए आफ्टर T टाइम बॉडी कहां पे पहुंच गया? Q। O to P, the distance is R, the radius of that path, जो भी सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा वही हमारा डिस्टेंस है, और Q पॉइंट पे भी हमारा सेंटर से डिस्टेंस कितना है? So when you cover from P to Q, जब आपने P से Q कवर किया, so the linear displacement is S. So what is this S represents? ये S आपको क्या represent कर रहा है? It represents the linear distance. आपने linear distance कितना कवर किया? Got that point? Okay. P पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन कहाँ होगी? Along the tangent, और Q पॉइंट पे भी हमारी डायरेक्शन along the tangent. Okay? And when we move, जब हम मूव किए कहां से कहां? P से Q. So thus from P to Q, the time taken is T. मान लीजिए आपको रैंडम T टाइम लगा, तो जब आप P से Q गए तो आपने कुछ एंगल कवर किया with respect to center, and that angle is called as angular displacement.
उसको आपको आप बुलाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, लीनियर पे जा रहे थे, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, या सिंपली आप लोग उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बुला सकते हैं। बट अब हमारा वो चीज एंगुलर में होगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द एंगल covered by the body in given time when it moves over circumference. Clear? मीन्स जब आपका बॉडी सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव कर रहा है तो उसने उस गिवन टाइम में सेंटर पर कितना एंगल कवर किया, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड वी ऑल नो दैट फ्रॉम द क्लास 10th जहां पे आपने सर्कल पढ़ा था, तो ये तो आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये रिलेशन आप लोगों ने सुना होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ आर्क, और यहां पे लेंथ ऑफ आर्क का काम कौन कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और हमारी रेडियस है आर। तो सीधा सा हमें एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट, एंगुलर displacement is equal to what, linear displacement. When I am saying linear displacement, it means I am talking about its magnitude only, divided by what, radius of circular path. Am I clear with this point? So what is the point and what is the final formula जो हमें यहाँ से मिला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया ओवर द सर्कमफेरेंस, बट उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? और अगर ऐसा है तो आप प्लीज इसकी एसआई यूनिट बनाने में हेल्प करेंगे। सो एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड मीटर, ये भी मीटर, तो यहां से कुछ नहीं आएगा, बट ये तो आप जानते हैं दैट वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कुछ और क्वांटिटीज को फंडामेंटल मानते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंगल, और एंगल की एसआई यूनिट इज रेडियन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन। ये बात आप याद रखेंगे या फिर डिग्री में भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला। सो डायमेंशन L, तो L by L दोनों कैंसिल, तो डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 L0 T0, मींस इट इज डायमेंशनलेस। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी यूनिट तो है रेडियन, बट ये इसका कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि डायमेंशंस को हम लोगों ने रिप्रेजेंट केवल फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारी 7 बेसिक थी उन्हीं के लिए लिया था, और ये उनमें से इन्वॉल्व हैं। Okay, so L by L वो finally cancel. Clear? Now we will do with the second definition. अब हम आ जाते हैं अपनी second पे, तो ये हमारी first थी. Now we will go to the second. And what is the second one? It is called as angular velocity. Symbol omega. What is the symbol called as? The pronunciation of this symbol is omega. Okay, and it is look like the W but it is not W. Okay, so W for white कोई कॉल नहीं करेगा, कोई इसे W नहीं बोलेगा, its pronunciation is omega, और ये थोड़ा सा कर्व होके चलता है, यानी आप जो W जनरली स्ट्रेट बनाते हैं, ये स्ट्रेट W नहीं है, ये W जैसा है बट थोड़ा सा कर्व है, तो वो आपको थोड़ा सा रिमेम्बरेंस रखना है। So what is angular velocity? तो सीधी सी बात है, angular displacement हो रहा है, so the rate of change of angular displacement। अब काम वैसे ही होगा जैसे बेटा हम लोग लीनियर पे करते थे। What is linear velocity? The rate of change of linear displacement। अब इस बार angular है तो rate of change of angular displacement is known as एंगुलर वेलोसिटी। इसे क्या बुलाएंगे आप लोग इसे बुलाओगे एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt।
rate of change of mean differentiation of angular displacement with respect to time. चलिए इस चीज को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाते हैं. सो आगे और मॉडिफाई करते तो हमें क्या पता चलता है, थीटा इज इक्वल टू s बाय r. तो सिंस थीटा इज इक्वल टू s बाय r, तो ओमेगा क्या बनेगा, d by dt of s by r. What is r stands for? r stands for the radius, जो कि इस बॉडी कहीं पर भी घूमे सर्कुलर पाथ पे, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा. और अब आप डिफरेंशिएशन के रूल जानते हो. व्हाट इज द रूल, कि कांस्टेंट पार्ट हमेशा डिफरेंशिएशन से कहां जाएगा, बाहर. तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय r, डिवाइड में था ना वो तो बाहर आ गया, क्या बच गया, ds by dt. क्या बचा, ds by dt. और s क्या है, लीनियर डिस्टेंस, यानी आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. या तो लीनियर डिस्टेंस बुलाइए, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट बुलाना है तो मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कीजिए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो ये तो हम जानते हैं, ds by dt क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सिंपल सी बात है. तो ओमेगा इज इक्वल टू v by r. तो हमारे पास यहां पे क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू v by r. तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी. तो आप इसे वर्ड में कैसे लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, लीनियर वेलोसिटी. बट उस लीनियर वेलोसिटी का क्या, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेडियस. आई थिंक ये रिलेशन एग्जैक्टली ऐसा ही बन गया हमारे पास. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर बाय रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी इज लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस. सीधी सी बात है. चलिए इसकी एसआई यूनिट पे काम करते हैं. तो एसआई यूनिट क्या बनेगी यहां से, तो आप इसे v बाय r भी जा सकते हो, ओके. बट इसके साथ साथ हम इसे यहां से प्रेफर करना शुरू करेंगे. तो d थीटा यानी चेंज इन एंगल, और एंगल की यूनिट रेडियन और टाइम की सेकंड. तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, रेडियन पर सेकंड. तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड. लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला. तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि वो डायमेंशनलेस है, बट सेकंड का तो है टाइम, तो वो भी डिवाइड में है, तो t minus 1. So what is the dimension formula for angular velocity? It is t minus 1. So similarly like the linear, जब हमने पहली बार लीनियर मोशन को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने यही प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू की थी. पहले डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, फिर वेलोसिटी डिफाइन की. सो आई थिंक, एम आई क्लियर. और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग हाईलाइट भी करेंगे, तो डबल बॉक्स कर देता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट है. तो ये जो चीजें चल रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो वर्ड में लिखा है और ये बॉक्स है, क्यों, क्योंकि ये वो रिलेशन है, दीज आर दोज रिलेशन जो आपके एंगुलर फ्लो को लीनियर के साथ जोड़ता है. जब आप एंगुलर में चल रहे हो यानी सर्कुलर में चल रहे हो तो कहीं ना कहीं एंगल कवर कर रहे हो, और अगर उसे लीनियर के रिस्पेक्ट में देखना है तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस, यानी उसका मैग्नीट्यूड ही रखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, सो दिस इज द पॉइंट और दिस आर द 2 पॉइंट जो हमें यहाँ से कंसीडर करना है. गॉट दैट पॉइंट. ओके, सो वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई. तीसरा फैक्टर क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो थर्ड फैक्टर इज, और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे इज एंगुलर एक्सेलरेशन, and its symbol is alpha. So what is the symbol for angular acceleration? Alpha. Angular displacement का symbol theta, angular velocity symbol is omega, and angular acceleration is alpha. तो चलिए इसकी definition quickly बनाने में help कीजिए. तो जैसे हम लोग linear acceleration की बनाते थे ऐसे इसकी. So what is angularization? Angular acceleration, it is defined as rate of change of, it is defined as what, rate of change of angular velocity.
ओके, सो अल्फा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सो रेट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज मीन डिफरेंशिएशन, बट किसका, ओमेगा। सो द फर्स्ट रिलेशन जो हमें यहां से मिल गया, दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt, बट अब ओमेगा को हम जानते हैं, व्हाट इज द ओमेगा, v बाय r, तो इट इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ v बाय r। जैसे हम लोगों ने थीटा को s बाय r करके आगे सॉल्व किया, ऐसे यहां पे करते हैं, सिंस r स्टैंड्स फॉर द रेडियस, तो वो तो क्या है, कांस्टेंट, तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, dv बाय dt, और व्हाट इज dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बुलाते हो, एक्सेलरेशन, a, तो अल्फा इज इक्वल टू a बाय r। ये हमारा एक और रिलेशन आ गया, किसके बीच में, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर। तो हमारे पास लिंक क्या बना, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन, केवल उसका क्या, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यानी अब आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, और मैं आपको इसको इस तरीके से याद करने के लिए कहूंगा। सो हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट एंगुलर इज इक्वल टू लीनियर डिवाइडेड बाय रेडियस। इसे ऐसे याद कर लो, आप एक कॉमन फॉर्मूला याद बना लीजिए, अ कॉमन फॉर्मूला, एंगुलर इज इक्वल टू लीनियर बाय रेडियस। और ये बहुत जगह पे काम आएगा, नॉट ओनली in this part जहां पे हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, in future we have a one chapter also called as uniform circular motion में भी हम लोग जब काम करेंगे आगे, the system of particle and rotational motion। तो जब हम बॉडी को रोटेट करना शुरू करेंगे, in that case हमें फिर से एंगुलर की जरूरत पड़ेगी, और एंगुलर को अगर पढ़ना है तो कहीं ना कहीं लीनियर के साथ टीचर उसे कोलैबोरेट करके देता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक कॉमन फॉर्मूला बना लीजिए, एंगुलर माने लीनियर डिवाइडेड बाय रेडियस। अब वो डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बन जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस। अगर वो वेलोसिटी है तो क्या बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस। और अगर वो एक्सेलरेशन है तो क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन बाय रेडियस। यानी आपको इन तीनों रिलेशंस को, ये जो रेड और ब्लैक बॉक्स में जो मैंने लिखे हैं, तीनों को अब रटने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आप तीनों फॉर्मूलेस को वहीं पे बना सकते। गॉट दैट पॉइंट? नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। ऐसा यूनिट पे आ जाते हैं बेटा, तो इट इज डी ओमेगा बाय dt। तो इसकी ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला, रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, सेकेंड का स्क्वायर है, वो भी डिवाइड में, तो t माइनस 2। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, इट इज t माइनस 2। गॉट दैट पॉइंट? सो दीज आर द थ्री बेसिक एंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजी जो हमें यहाँ पे चाहिए। गॉट दैट? ओके। इसी के साथ रिलेटेड दो और छोटी छोटी टर्म्स हैं, प्लीज नोट इट डाउन, दीज ऑल द थ्री, टू स्मॉल मोर टर्म्स जिसको आप लोगों ने पहले सुना हुआ है इन द क्लास 9, बस आज हम लोग उन्हें एक बार जल्दी से कवर अप कर देंगे। ओके, एंड दीज टू टर्म्स आर, टर्म नंबर 4 इज टाइम पीरियड। I think you heard about this. So what is the time period? I will go with the definition. Means the time taken to complete one revolution. किसी भी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे आप लोग क्या बुलाओगे, टाइम टेकन, टाइम पीरियड। सॉरी, और इसका सिंबल हमेशा कैपिटल टी। स्मॉल टी का मतलब एनी टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक पूरा रेवोल्यूशन किया हो, क्या पता आधा किया हो, क्या पता 1/4 किया हो, 1/3 किया हो। बट जब हम कंप्लीट वन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन मींस पूरा का पूरा, यानी 360 डिग्री एंगल कवर करना है सेंटर पे आपको। सो वी ऑल नो दैट, ये तो हम सब सारे के सारे जानते हैं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है, जब भी हम लोग टाइम पीरियड पे बात करेंगे, जब भी हम लोग उसके लिए रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे,
तो हम उसे एंगुलर वेलोसिटी के साथ जोड़ते हैं। कैसे आएगा वो देखिए। तो सिंस वी ऑल नो दैट एंगुलर वेलोसिटी का एक कॉमन फॉर्मूला क्या बनाया था, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू बेसिक डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो यहां से अगर हम लोग कांस्टेंट, अगर हम लोग वही वाली बात कर रहे हैं ना, यूसीएम पे बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो यहां से टाइम टेकन क्या आएगा, टाइम टेकन बट फॉर व्हाट, वन रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन का टाइम टेकन, इसे ही तो टाइम पीरियड बुलाते हैं, शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट कितने का, वन रेवोल्यूशन का, डिवाइडेड बाय व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि हमेशा सेम रहेगी। तो टाइम पीरियड, एक रेवोल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री, और रेडियन में बोले तो 2 पाई रेडियन, ये तो आप जानते हैं। सो इट इज 2 पाई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा, और यहां से हमें ओमेगा का एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या, 2 पाई बाई 2। तो देखो ओमेगा के बहुत सारे फॉर्मूले गैदर हो गए हैं। एक तो ओमेगा का फॉर्मूला d थीटा बाय dt हो गया, लीनियर वेलोसिटी की टर्म में इट इज v बाय r, ये भी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर, और अभी अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड की टर्म में उसे एक और बना लिया। तो ओमेगा के आपके 3 फॉर्मूलेस बन गए हैं अभी तक, और ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे, तो इसलिए प्लीज कंसंट्रेट रहिए और सारे पॉइंट को पढ़िए। सो हमारा 4th पॉइंट क्या था, टाइम पीरियड। ऐसे ही हमारा एक और पॉइंट है 5th एंड द लास्ट, जो हमें सर्कुलर मोशन को पढ़ते टाइम बहुत जरूरी पड़ता है, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। सिंबल इज म्यू, v जैसा है बट इसका एक हाथ बड़ा होगा, एक हाथ बड़ा बनाना है, एक हाथ छोटा बनाना है, ठीक है, सिंबल पे ध्यान। या फिर समटाइम्स किसी बुक में इसका सिंबल स्मॉल f भी रख देते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस किए, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे। और न्यूमेरिकली व्हाट, न्यूमेरिकली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। और अगर फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड, और दूसरी यूनिट जो आप लोगों ने सुनी होगी, हर्ट्ज। सो द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड, और हर्ट्ज भी इसकी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। आप लोगों ने 9th क्लास में साउंड और वेव में इस चीज को ज्यादा पढ़ा है, गॉट दैट पॉइंट। और अगर 1/t म्यू है तो हम लोग एक और रिलेशन बना सकते हैं भाई, यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाई t, तो आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, 2 पाई इंटू 1/t। 2 पाई बाई t को ऐसे लिखा जा सकता है, और 1/t किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू। यानी एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला लो भाई, और अब आप लोग इसके अंदर मल्टीपल ला सकते हो। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं जो अब तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को समझने के लिए जिन जिन चीजों का जरूरत है, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए क्या है, वो लीनियर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर वो लीनियर के साथ कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन आ गया। फिर आया हमारा कौन सा, 3rd पार्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, वो लीनियर एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेटेड है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, all the basic terms that we required for to study the uniform circular motion.
अब हम लोग इसका एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जाएंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एंड दैट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इट इज योर centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration means हम लोगों ने अब तक एक्सेलरेशन को स्टडी किया है, अब तक हम लोगों ने देखा है, बट अब हम लोग बॉडी को, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन कितना होगा, जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, तो वो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो हम बात करेंगे। और उस स्पेशल एक्सेलरेशन को यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बुलाया जाता है, whose symbol would be A suffix में C. So what is the symbol of centripetal acceleration? A suffix C. So चलिए इसे स्टडी करना शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन टाइप में है तो प्लीज एक बार ध्यान से देखेंगे। So we have a body at center O, this is the center O. हमारा बॉडी इनिशियली P पॉइंट पे है, now after T time it is at a Q point. Okay? Now, so हमारा बॉडी पहले कहाँ था, P पे। So for the P, the radius is R और Q के लिए भी रेडियस कितना है, R. At P point, your position vector is along the tangent. So P point पे आपका पोजीशन वेक्टर कहाँ है, along the tangent है, और पोजीशन वेक्टर यहीं पे है तो हमारी वेलोसिटी। So let's suppose at P point the velocity vector, not the magnitude. हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन नहीं। So the velocity vector at P point is v1 and at Q point the velocity vector is v2. तो डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज होगी। So what we have, चलिए काम करना शुरू करते हैं। Let us consider a body initially at P with velocity v1 vector. Now after time t आपने कुछ टाइम कवर किया, ओके, स्मॉल टाइम, चलो तो थोड़े से dt टाइम के बाद, आफ्टर टाइम dt, body is at new position, body is at new position Q. तो बॉडी एक नए पोजीशन पे Q with velocity v2 है, तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v2 वेक्टर, एंड द मोशन ऑफ बॉडी इज UCM. तो बॉडी का मोशन हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इट मींस v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। इस बात पे भी ध्यान देंगे सब कि दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर नहीं लगाना है। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगा देता, इफ आई राइट अ v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर, इसका मतलब दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है, नहीं, बस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप इसे, इन दोनों मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिखो, v1 वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू v2 वेक्टर मॉडुलस, या फिर आप सिंपल v1 भी लिख सकते हो। तो v1 और v2 इक्वल है मैग्नीट्यूडली v के बराबर। ओके, सो ड्यूरिंग दिस मोशन जब वो P से Q गया तो उसने सेंटर पे कुछ स्मॉल एंगल कवर किया होगा। लेट्स सपोज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज d थीटा। So thus angular displacement covered in dt time is equal to कितना, d थीटा। और आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना किया, इस बात को सब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो बॉडी कर्व पाथ पे है तो हमारा जो लीनियर डिस्टेंस है वो P से Q जाएगा, बट जब हम P से Q जा रहे हैं तो वैसे तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर आप P से Q बनाते हो तो ये डॉटेड लाइन आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखा रहा है।
बट यू कैन इजीली चेक, आप इसे इजीली आराम से देख सकते हैं, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये नियरली आपके इस कर्व पाथ के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा ये जो कर्व पाथ का लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा ये वाला लाइन होगा, जिसको हम लोग डेल्टा एस यानी ds से नाम देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो ds है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम लोग कर्व पाथ पे लेते थे, जिसे लेंथ ऑफ आर्क लेते थे, वो नियरली इक्वल होगा इस PQ लाइन के। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन dt, और उसी टाइम में जिस टाइम में आपने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया उसी समय में आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया ds। तो आई थिंक अब आपको सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स क्लियर है कि हमारा बॉडी पहले p पॉइंट पे था जिसकी वेलोसिटी थी v1 वेक्टर, फिर आफ्टर dt टाइम उसने एक नई पोजीशन ले ली q जहां पे उसकी नई वेलोसिटी है v2 वेक्टर। सो ड्यूरिंग दैट मोशन, ये मोशन जब वो p से q गया तो ये मोशन कैसा था, ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। और अगर ये मोशन UCM है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हम UCM का ही बात कर रहे हैं अभी के लिए, ओके, नॉन यूनिफॉर्म की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दोनों वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, और इसी मोशन के दौरान आपने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और आपने एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। गॉट दैट पॉइंट? चलिए अब it आउटसाइड एक छोटा सा काम करते हैं और इस पे सब इंपॉर्टेंटली ध्यान देंगे। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट A आउटसाइड। आप एक आउटसाइड एक A पॉइंट को कंसीडर कीजिए, एक कोई भी एक रैंडम A पॉइंट, ओके। अब इस A पॉइंट से दो वेक्टर बनाते हैं। सो वी विल ड्रॉ AB वेक्टर। हम क्या बनाएंगे? AB वेक्टर बनाएंगे, ओके। AB वेक्टर बनाएंगे सच दैट कि AB वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर। सो हम एक A पॉइंट आउटसाइड लेंगे एंड ड्रॉ AB वेक्टर which is equal to V1 वेक्टर, यानी जितना ये वेलोसिटी वेक्टर है उतना ही, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का लेंथ हमेशा उसकी क्या देता है, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड देता है और उसका डायरेक्शन हमेशा उसकी डायरेक्शन देगा। तो हमने AB वेक्टर एग्जैक्टली वैसा ही बना लिया जैसा हम लोगों ने यहां पे लिया था, उतनी ही लेंथ का और उतना है। सिमिलरली एंड ड्रॉ कर लिया AB वेक्टर एंड वी विल ड्रॉ AC वेक्टर which represents V2 वेक्टर। तो जितना Q पे पोजीशन है उतना ही हम लोग AC वेक्टर बना लेते हैं, V2 वेक्टर AC। ये जो AC पॉइंट है ये हमारा V2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो AB पॉइंट है वो हमारे V1 वेक्टर। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया कि जब हम P और Q पॉइंट को पढ़ने जाएंगे तो देखो दोनों पॉइंट की पोजीशन अलग अलग है, इसलिए दोनों में डेविएशन है। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें दोनों को को इनिशियल वेक्टर बना के एक बार देखना पड़ेगा, यानी हमें उन दोनों वेक्टर को ऐसे देखना पड़ेगा कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक है। बट इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। देखो पहले आप ऐसे जा रहे थे, अब आप लोग इतना जा रहे हो, तो मान लीजिए पहले आपकी डायरेक्शन ये थी, P पॉइंट की पोजीशन ये थी, Q पॉइंट की पोजीशन ये है, तो मान लीजिए आप 30 डिग्री बेंड हो गए। कितना बेंड हुए? 30 डिग्री। तो डेफिनेटली आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 30। यानी जितना हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे हमारा वेलोसिटी वेक्टर उतना ही तो झुकता जाएगा। भाई ये रेडियस है, वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है, ये तो आप मानते हो, ये हमने पढ़ा है। तो ये जो रेडियस है इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है, और ये आप जानते हैं सर्कल में कि रेडियस और टेंजेंट आपस में नॉर्मल यानी 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये रेडियस है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं रेडियस को 30 डिग्री डेविएट कर देता हूं, मेरा ये रेडियस यहां था, अब रेडियस यहां पे आ गया Q पोजीशन पे, तो डेफिनेटली मेरी वेलोसिटी वेक्टर भी तो उतनी ही घूमेगी क्योंकि वो उसके साथ 90 डिग्री फिर बना रही है। तो इसका मतलब V1 वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है वो वही है जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हमारी वेलोसिटी में चेंज कितना आया? डेल्टा V वेक्टर। ये हमारा क्या दिखा रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। सो दस चेंज इन वेलोसिटी
वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहली बात तो ये सोचो। यस, डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंज हुआ। हाँ, मैग्नीट्यूडली कोई चेंज नहीं हुआ, इसका भी मैग्नीट्यूड v है, इसका भी मैग्नीट्यूड v है, बट डायरेक्शन वाइज चेंज हुआ है भाई। तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेफिनेटली ये तो आप जानते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल। हाँ, मैग्नीट्यूडली कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मैग्नीट्यूडली सेम था, बट डायरेक्शन वाइज चेंज आया। अब इंपॉर्टेंटली ध्यान देंगे यहाँ पे। हम लोगों ने एक ट्रायंगल बाहर बना लिया जो हमारी v1 और v2 को रिप्रेजेंट करता है और चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक ट्रायंगल सर्कल में भी बन रहा है OPQ, जो हमारा रेडियस और हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। दोनों ट्रायंगल पे देखेंगे, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ABC, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल, पर दोनों में एक सिमिलैरिटी है, वो है एंगल की। क्योंकि जितना एंगल यहाँ पे कवर हुआ है सेंटर पे, उतना ही एंगल वेलोसिटी ने अपने आप को चेंज किया। तो ये एक ऐसी चीज है जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। सो दस हियर ट्रायंगल QOP is equal to angle CAB which is equal to d theta। दोनों में एंगल सेम है। दूसरी बात, इधर OQ और OQ डिवाइडेड बाय OP, इन दो साइड का रेशियो निकालो, OQ डिवाइडेड बाय OP, R by R which is equal to 1। और इस ट्रायंगल में फिर एक और साइड देखो, AB, लेंथ ऑफ AB कितना है, V के बराबर है, और लेंथ ऑफ AC यानी AB by AC, तो AB कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ V1, और V1 का मैग्नीट्यूड भी V था, और AC क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ V2, वो भी V था क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों का रेशियो भी बनाएगा। यानी अब हमारे पास एक चीज हो गई, क्या, हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल में, इन बोथ द ट्रायंगल्स, वन एंगल इज इक्वल एंड द पेयर ऑफ द साइड्स हैव द सेम रेशियो। तो एक एंगल इक्वल है और पेयर ऑफ द साइड्स के रेशियो दोनों ट्रायंगल के सेम है। तो thus triangle POQ would be similar to triangle ABC। तो हमारा जो ट्रायंगल POQ है वो हमारा BAC से सिमिलर होगा। और यहाँ पे अगर ये दोनों सिमिलर हैं, अगर दोनों यहाँ पे सिमिलैरिटी में चल रहे हैं तो सिमिलर हैं, तो चलिए दोनों पे काम करते हैं। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों साइड के रेशियो इक्वल हैं, तो इसका मतलब अदर साइड के भी रेशियो इक्वल होंगे। सो दस सिमिलर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएं, जो आप मैथमेटिक्स की जरूरत है यहाँ पे थोड़ा। तो इफ वी अप्लाई द सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी इन बोथ, क्योंकि दोनों सिमिलर हो चुके हैं, तो इस साइड का रेशियो निकालते हैं, PQ डिवाइडेड बाय PO, PQ डिवाइडेड बाय PO शुड बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय BA होगा। तो अब PQ क्या है, PQ रिप्रेजेंट दी DS, यानी स्मॉल चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि नियरली इस कर्व के ही बराबर होगा। तो DS डिवाइडेड बाय PO, PO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को, शुड बी इक्वल टू BC, BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को, डिवाइडेड बाय BA, BA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V को। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय वेलोसिटी। तो यहां से आपके पास, और यू कैन से dv is equal to v by r, this will multiply into ds। okay, now divide with dt on both sides, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दीजिए। आई थिंक उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो व्हाट इट वुड बी, dv by dt is equal to v by r ds by dt। okay, what is dv by dt? dv by dt means rate of change of velocity, तो ये हमारा acceleration is equal to v by r, और what is ds by dt? it is velocity, rate of change of displacement। so a is equal to क्या बना, v square by r, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बुलाएंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
which is डायरेक्शन वाइज जब हम लोग इसको देखें, which is always directed towards the center, always directed towards the center। यानी ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल यानी टुवर्ड्स दी सेंटर, यानी ये एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। और दिस इज द पॉइंट जो हमें स्टडी करना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा फ्यूचर में। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, बट अगर हम लोग इसे एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में करना चाहते हैं तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू v/r होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस, तो यहां से लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इनटू r, और ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो इट वुड बी ओमेगा स्क्वायर इनटू r²/r, और एक r से एक r कैंसिल, तो फाइनल रिलेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू r। So this is the relation for what? Centripetal acceleration, the acceleration of the body during the uniform circular motion। कब की बात हो रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो जब भी आपकी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है तो उसका एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। मींस क्योंकि मैंने बोला ना p से क्यूब है तो वेलोसिटी तो चेंज हुई है। अभी अगर ये वेलोसिटी चेंज हुई है तो ये वेलोसिटी चेंज किस तरफ डायरेक्ट है? ये डेल्टा v किस तरफ है? तो अगर हम इस डेल्टा v को इसके अकॉर्डिंगली बनाएं तो इसके अकॉर्डिंगली अगर एक बार देखो तो ये v1 लग रहा था, चलो मैंने वो थोड़ा सा इस तरफ बनाया तो एक बार वापस से देखते हैं। ये v1 लग रहा था, v1 वेक्टर, ये हमारा v2 वेक्टर लग रहा है किस तरफ? ओके, तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से होगा, जो यानी इसको सेंटर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन आपको हमेशा नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करता है और आप हमेशा नीचे की तरफ दबते जाते हो, बट वो नीचे की तरफ, क्योंकि जब आप नीचे आओगे तो आप कहोगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप ऊपर हो तो आपको फील हो रहा है कि हमारी वेलोसिटी वो नीचे झुकती जा रही है, और जब नीचे है तो हमारी वेलोसिटी ऊपर की तरफ झुकती जा रही है। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी का जो चेंज है, ये डेल्टा v जो है हमारी वेलोसिटी का, वो हमेशा किसकी तरफ है डायरेक्टेड है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ है? सेंटर की तरफ, AC। So what is the direction of centripetal acceleration? Centripetal acceleration is always directed towards the center, and this is your final and the most important thing जो circular motion के लिए हमें स्टडी करना है, जो मैंने आपका होल्ड करके रखा था इन द वेक्टर, बट इसकी जरूरत अब हमें पड़ेगी, and this lecture is being totally dedicated to circular motion. So please everyone note it down the diagram and all the concepts, so please clear it. Okay, now once you have discussed the centripetal acceleration, तो एक छोटा सा काम within the 2 minutes, I know the time is being very high but topic miss रह जाता है, and that point is centripetal force। तो definitely जब आप एक circular motion में हो तो आपका एक्सेलरेशन, यानी डेफिनेटली बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो आपका जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो किस तरफ डायरेक्टेड है? अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल। अगर बॉडी यहाँ पे आ गई है तो वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, यानी बॉडी कहीं पे भी जाए सर्कुलर पाथ पे उसका एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, यानी उसकी चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ होगी। तो डेफिनेटली मास है, एक्सेलरेशन भी है बॉडी के पास, तो फोर्स भी होगा, और उस फोर्स को क्या बुलाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन which is always directed towards center is known as centripetal force। उस फोर्स को आप लोग क्या बुलाएंगे? We will call that force as a centripetal force, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो ऐसे फोर्स को क्या बुलाओगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? F is equal to mass into centripetal acceleration।
ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आया था, v स्क्वायर बाय r, और या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू r। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला मिल गया। So what is the formula for centripetal force? mv square by r or m omega square into r, where m stands for the mass of the body, v stands for the linear velocity of the body and r stands for the radius. But जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये angular velocity की टर्म में आएगा, तो यानी जब आप angular velocity यूज करोगे तो radius अपर है, न्यूमरेटर में है, बट अगर linear velocity है तो डिनोमिनेटर। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन में रहना है, बॉडी को कौन से पाथ पे रहना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सेम वेलोसिटी बट सर्कुलर पाथ यानी फिक्स डिस्टेंस पे रहना है, तो आपको एक बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बुलाएंगे उस फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, centrifugal force, the force which allows the body to be in uniform circular motion। वो फोर्स जो बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने के लिए अलाउ करेगा उसे क्या बुलाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हमेशा कहाँ है, ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, हमेशा कहाँ रहेगा, ये सेंटर से दूर रहेगा, सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा। बट न्यूमेरिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न्यूमेरिकली इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा। तो यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय r, बट न्यूमेरिकली डायरेक्शन वाइज सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल उसे बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और हमारी बॉडी ना तो अंदर गिरेगी ना बाहर जाएगी कंप्लीटली, और वो एक फिक्स पॉइंट पे एक सेंटर के चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस पे हमेशा घूमती रहेगी। And this is called as uniform circular motion. I know lecture बेटा थोड़ा सा लेंथी गया है, but circular motion को अगर आप एक साथ सुने और एक साथ समझें, then it would be very much beneficial. So please complete this concept, इस concept को clear कीजिए। No assignment with that again, क्योंकि theoretical concept है, समझना है तो इसे completely समझिए। We will meet in the next lecture how to utilize this centripetal, centrifugal, ये सारी चीजों को कैसे utilize करें और फिर इसके numerical और next concepts को पढ़ेंगे। So till then, complete it and stay safe. Thank you बेटा।